السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جہانگیر سر ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا الف لام میم چینل پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں آج جس ٹاپک کو لے کر کے آئے ہیں، ہم جو ٹاپک کو لے کر کے آئے ہیں وہ اردو کی دنیا کا، آپ کے نصاب یعنی 12ویں کلاس کا نظم کی دنیا میں کھیتی لے کر کے آئے ہیں۔ بہت زبردست طریقے سے عمیق حنفی نے اس 11 مصرے پر جو مشتمل یہ نظم ہے اس کے بارے میں ہم تمام لوگوں سے روبرو ہونے کی پوری کوشش کی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اس نظم کے اندر صرف 11 سطر کا یہ نظم ہے، 11 لائن کا یہ نظم ہے، لیکن کمال طریقے سے ہمارے پورے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے یہ نظم، جس کے بارے میں ہم آج پڑھائیں گے آپ کو کہ نظم کھیتی کس کی لکھی ہوئی ہے۔ نظم کھیتی جو ہے وہ عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ہے، اور عمیق حنفی صاحب کو میں نے اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو کہ عمیق حنفی صاحب اتر پردیش میں 1928 میں پیدا ہوئے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور سنگ پیراہن جو ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، میں نے یہ آپ کو پڑھا دیا ہوا ہے۔ انہی کی ایک نظم ہے عمیق حنفی صاحب کی کھیتی، یہ ایک نظم ہے اور یہ ایک آزاد نظم ہے۔ یہ کون سا نظم ہے؟ ہم نے جو پڑھایا تھا آپ کو کہ 5 طرح کے نظم میں یہ ایک کیا ہے، یہ ایک آزاد نظم ہے، 11 سطروں پر یہ مشتمل ہے یہ نظم، ہے نا، کس کی؟ عمیق حنفی صاحب کی۔ سنگ پیراہن کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ انہی کی لکھی ہوئی شعری مجموعہ ہے نا، سنگ پیراہن۔ اور اس سے پہلے ہم 2 نظم اور پڑھا چکے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید ایک اور نظم پڑھانے کے بعد اب ہم چلیں گے غزل کی دنیا میں، بہت مزہ آئے گا، بہت بہترین طریقے سے ہم لوگ سمجھنے اور بوجھنے کی پوری کوشش کریں گے کہ غزل کی دنیا میں کون کون شعراء کرام کا نام آپ کے نصاب میں ہے، اور غزل کہتے کس کو ہیں، پہلے مصرے کو کیا کہا جاتا ہے، دوسرے مصرے کو کیا کہا جاتا ہے، تیسرے والے کو کیا کہا جاتا ہے، چوتھے والے کو کیا کہا جاتا ہے۔ آپ بنے رہیں میرا چینل الف لام میم چینل کے ساتھ۔ ساتھیوں، عزیز طلبہ، آج ہم لوگ گفتگو ہوتے ہوئے اور میرا سفر ہوتے ہوئے آج ہم لوگ آئے ہیں کھیتی پر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں گفتگو علی سردار ظافری کی لکھی ہوئی نظم ہے، اس کے بعد میں نے کہا کہ میرا سفر یہ بھی علی سردار ظافری کی لکھی ہوئی ہے، اور آج تیسرا نظم پڑھا رہے ہیں آپ کو اور اس کا نام ہے کھیتی، یہ دوسرے یعنی عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ایک کھیتی ہے۔ ہم سب سے پہلے پچھلے ویڈیو میں کچھ ورڈز اور کچھ میننگ آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ لفظ ہم بتائے تھے اسی نظم کے لیے، جب وہ نظم ہم پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے وہ چیزیں یاد آ جائیں گی، پھر آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی۔ آئیے ہم لوگ، آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہوں گے، بالکل چھوٹا ٹاپک ہے، بالکل سمجھنے کی ٹاپک ہے یہ نظم کون سا ہے؟ نظم ہے کھیتی۔ نظم کھیتی ہے، لیکن اس کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ نظم کھیتی تو ہے لیکن اس کا مرکزی کردار کیا ہے؟ کون ہے؟ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے وقت۔ کیا ہے؟ وقت۔ یقیناً یہ وقت جو ہے بڑا انمول ہے ہر ایک جاندار کے لیے، یہی وقت انسان کو پورے عروج پہ لے جاتا ہے، لیکن چند سیکنڈ، چند منٹ کے بعد یہی وقت انسان کو پورے زمین پہ لا کے مٹیاں مل کر دیتا ہے۔ آپ نے کئی حادثات دیکھے ہوں گے، 2-4 دن پہلے بھی ایک حادثہ ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ ایروپلین حادثہ ہوا، یہ کیا تھا؟ نہ جانے کتنی خوشیاں اس کے ساتھ تھی، اس کے اندر تھی، لوگ خوشی خوشی اڑ رہے تھے، چلنا چاہ رہے تھے، اڑان دھر رہے تھے، پرواز کر رہے تھے، لیکن ایک چند سیکنڈ کے بعد، منٹ کے بعد ایسا وقت آیا کہ وقت بدلا اور کہانی ختم ہو گئی۔ اسی وقت کے بارے میں عمیق حنفی صاحب نے اپنی کھیتی کا تذکرہ مرکز ہیڈ لائن بنایا اس نظم کا، کیا؟ کھیتی، اور مرکزی کردار کیا ہوا اس کا؟ وقت ہے۔ کیا ہے؟ وقت۔ اور پھر بالآخر آخرت، اس کے لک میں ایک لائن ہے اس نظم کے اندر، آخری مصرع، سب سے آخری مصرع میں یہ لائن ہم پڑھیں گے ابھی اس کو، کہ ہم بالآخر اس کے لک میں، ہم بالآخر اس کے فصل۔ یہ 2 لفظ ہیں اور یہ دو جملے ہیں، ایک مصرع کہا جائے اس کو،
यकीनन ये झिझोड़ने वाला है, बदन को हिला देने वाला ये मिसरा है। हम पहले समझते हैं उसके बारे में कि इस नज्म के अंदर क्या कहने की अमीर हनफी साहब ने कोशिश की है। चलिए हम पहले नज्म को एक बार पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें आपसे उम्मीद है, भरोसा है, आप जब पढ़ रहे हैं अपनी किताब अपने पास रखे होंगे, जब हम पढ़ेंगे तो आप भी अपना नजरें वहां जमाए बैठें, जिससे कि आपको अगर कभी कभी गलती इंसान पड़ जाता है तो वो आप आराम से उसको ठीक कर सकते हैं कि हमको ये गलती हो रहा था, अब हमें ठीक हो जाएगा। नहीं, चलिए अब हम देखते हैं कि अमीर हनफी साहब की ये 11 लाइन में ये पूछता है क्वेश्चन में कि अमीर हनफी साहब की खेती नज्म कितने मिसरों पर मुश्तमिल है। जी 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13। आपको याद होना चाहिए इनकी जो खेती है वो 11 पर, कितना, 11 मिसरों पर मुश्तमिल है। 11 मिसरा इसके अंदर है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम। उससे पहले मैंने कहा था आपको जर्री, जर्री का मतलब क्या होता है, सुनहरा। मैंने कहा था बाद, बे अलिफ दाल, है ना, इसका मतलब क्या होता है, हवा। और एक होता है बे ऐन दाल बाद का मतलब बाद में, इस थोड़ी देर के बाद, कल के बाद नहीं जी। उसके बाद मैंने कहा था आपको बदमस्त, बदमस्त मतलब मदहोश, नशे में चूर। उसके बाद मैंने आपसे कहा था अंजाम कार मतलब आखिरकार। उसके बाद मरहमत यानी इनायत, मेहरबानी। ये चंद छोटा सा मीनिंग है क्योंकि बहुत छोटा सा ये नजम भी है। 11 मिसरा कितना बड़ा होता है सोच सकते हो खुद आप। चलिए इसके अंदर कहता है कि वक्त की खेती हम, ये पहला लाइन है। यहाँ पे दो चीजें हैं। आप जब खेती आता है तो लोगों को लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हम शायद खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं अमीर हनफी साहब, लेकिन जब हम एक लाइन पढ़ते हैं पहला मिसरा और आता है इसके अंदर वक्त की खेती हम, यहां पर आगे जैसे हम लफ्ज आता है उसके बाद आपकी सोच बदल जानी चाहिए। जी ये आप खेती बाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे खेती की बात कर रहे हैं कि इंसान वक्त के साथ पैदा होता है, बड़ा होता है, परवान चढ़ता है, बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, अरमान होते हैं लोगों की, लेकिन एक वक्त वही वक्त फिर आता है कि चंद सालों के बाद, चंद मिनटों के बाद, चंद घंटों के बाद वो वीरानियत छा जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, असल तस्करा इसी के बारे में इन्होंने किया है। उसके बाद है वक्त बोता है, उगाता है, पालता है। 3 लफ्ज है। कहता है वक्त बोता भी है, ऐसे जैसे खेती में अभी बीज कोई खेत में बोए हुआ नहीं है, उसको ऐसे छींट दिया गया है, लेकिन क्या है अब पहले उसको बोएगा, है ना, फिर उसमें मौका देगा, फिर वो काटेगा। वैसे जिंदगी है कि जिंदगी बस थोड़ा सा है, कोई इंसान पैदा हुआ, वो बच्चा हुआ, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद उसकी शादियां होती है, फिर वो बूढ़े होते हैं और फिर एक वक्त आता है उसकी कहानी खत्म हो जाती है। और कहता है वक्त बोता है, उगाता भी है, पालता भी है, सब कुछ करता है। बड़े बड़े महलों में लोग रहने लगते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ियां होती हैं, बड़ी खूबसूरत गाड़ियां पर लोग चढ़ते हैं, बड़े अरमान, बहुत कमंडियां हुआ करती है लोगों के अंदर कि हम तो इतना पैसा कमाते हैं, मेरे पास तो इतने बंगले हैं। लेकिन ये 3 लफ्ज कहता है वक्त बोता भी है, वक्त उगाता भी है, वक्त पालता भी है, यकीनन पालता है। फिर क्या होता है वो देखिए, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। वक्त जब तक आपको छूट दिए हुआ है, आप बिल्कुल पूरे उड़ान पे रहते हैं, बिल्कुल अपनी ख्वाहिशों को चरम पे रखते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें सबसे बड़ा ऊंचा बंगला बनाना है, हमें लोग बड़े लोगों में गिनती शुमार हो जाएं हम, ये सब बातें करते हैं लोग, क्योंकि हो भी क्यों नहीं, वक्त उनको मौका देता है कि तुम उड़ो। फिर कहता है सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है और नाचने देता है बाद शौक की मौजों के साथ। वक्त जब तक आपके साथ है, आप जहां चाहे उड़ान कर लीजिए, जो चाहे कर लीजिए, आप बिल्कुल इनायत यानी मेहरबानी, सुनहरा मौका है, जर्री है, मौका मिलता है, लोग जितना चाहे कर सकता है अपने परिवार, है ना। लेकिन फिर कहता है कि चूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में। हमदमी का मैंने आपको बताया था दोस्ती, कि चाहता है कि हम कहां से कहां पहुंच जाएं, इसीलिए तो चांद पे इंसान पहुंच चुका है। नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार पहुंचा, क्यों, उसको वक्त ने मौका दिया, उसने मेहनत की और वक्त ने उसको साथ दिया, चढ़ गई, है कि नहीं। इसी तरीके से फिर आगे कहता है
कि चांदनी चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता, पाके खुश होता है वक्त, हाँ मगर अंजाम कार काट लेता है हमें। जी, एक दिन आता है कि वो कहानी खत्म हो जाती है, सारे अरमान धड़े रह जाते हैं, सारी चीजें जहां है वहीं पड़ी रह जाती है, और फिर वो इंसान चुपके से उसकी रूह निकल जाती है, परवान कर जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। ये इंसान का वक्त है। उसके बाद कहता है बिल आखिर उसके लुक में, किसके लुक में? मौत के लुक में। जी, बिल आखिर उसके लुक में हम चले जाते हैं, और कहता है हम बिल आखिर उसके फसल। और क्या है, इंसान, एक किसान जिस तरीके से पहली बार खेत में बीज को बोता है, फिर उसे उगाता है, फिर निकाल करके दूसरे खेत में उसे बुआई करता है, रोपता है, और फिर 3 महीना 4 महीने के बाद 2 महीने के बाद उसे क्या करता है, उस फसल को काट लेता है। कितना वक्त के अकॉर्डिंग वो खिलता है, लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है वो किसान चुपके से खेत के पर जाता है और आराम से उसके नीचे से काट लेता है, और बिल्कुल मुरझा करके वो खत्म हो जाता है उसकी कहानी। इसी तरीके से इंसान के बारे में आमिर हनफी साहब ने भी बताने की पूरी कोशिश की है कि इंसान अपने वक्त के अकॉर्डिंग परवान चढ़ता है, बिल्कुल खुशी खुशी आगे बढ़ता है, लेकिन एक वक्त आता है, फिर वही वक्त हालात बदल देता है, और फिर बिल आखिर मौत के लुक में यानी रूह आकर के और फरिश्ते लेके चले जाते हैं। यही इसी नज्म, ये 11 मिसरे पर जो मुश्तमिल ये नज्म है, बड़ी खूबसूरती के साथ आमिर हनफी ने छोटे से नज्म के अंदर में इसको पिरोने की पूरी कोशिश की है, और हमें लगता है कि वो कामयाब भी हुए हैं। ये नज्म, अब मैं समझता हूं कि इस नज्म के बारे में कि मरकजी किरदार तो क्या है, वक्त है। वक्त के बारे में क्या क्या इसके बारे में कहा गया है, आमिर हनफी साहब ने किस चीज को कहने की बात है इसमें की है। इस नज्म के अंदर वो कहने की कोशिश ये करते हैं कि हर हाल में, चाहे दुनिया के जितने भी जानदार हैं, सारे के सारे चीजों को यहां से वक्त के हिसाब से चला जाना है, कोई रहने के लिए यहां नहीं आया है। इसलिए फिर कैसी घमंडी, फिर अपना कैसा वो दिन कि हम बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे आला हैं, मैं अपने गांव में, मैं अपने साथियों में, मैं अपने खैश व अकारिब में हमें सबसे आला मकाम मिला हुआ है। ये कब तक की बात है? ये चंद महीने चंद सालों की बात है, वरना जैसे वो गरीब की रूह निकल जाती है वैसे कोई अमीर की भी रूह निकल जाएगी, और कोई ढूंढने वाला भी नहीं होगा। चंद दिने चंद महीनों के बाद वो इंसान को कोई नाम लेवा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि दुनिया इतना बदमस्त है, दुनिया अपने आप में खूब बदमस्त है, बिल्कुल अपने आप में उसका अलग जिंदगी है दुनिया का, है ना। वो निसाब खुदा ने ऐसा बनाया इस मेले को कि इसके अंदर कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। यहाँ तो दुनिया में याद नहीं कर पाता है इंसान, मरने के बाद क्या याद करेगा? नहीं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं साथियों कि अपने आप को ऐसा जिंदगी जिए कि जैसे कोई इंसान मुसाफिर होकर आया हो। आज है कल चला जाएगा। जी हाँ, आज है कल यहाँ पे नहीं होगा, कल कहीं और चला जाएगा। तो हम फिर किस बात की हमें घमंडी, किस बात का हमें फिर ये गुमनामे अंदर में है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरे तरीके से अंदर में लिए हुए है ना, कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो रईस हैं, हम तो बहुत ऊंचे महलों में रहते हैं। ये सब वक्त चीजें हैं, वक्त है आप पाल लीजिए, वक्त है आप कर लीजिए आपका, लेकिन ये बात याद रखिए वही वक्त फिर आपको वापस लाएगा, और झटके में कब ले आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल होकर के आमिर हनफी साहब ने इसमें जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करने की बात कही है। आमिर हनफी साहब से चंद सवालात हैं, हम उसके जवाब बिल्कुल लाइव देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तरफ से फिर दोबारा तो आएंगे ही। इसके अंदर पहला सवाल है, क्या नज्म खेती एक पाबंद नज्म है? ये पहला सवाल है। बाबू, मैंने पहले ही कह दिया आपको कि नज्म खेती जो है ये पाबंद नज्म नहीं है, ये एक आजाद नज्म है। लेकिन नज्म में क्या होता है कि एक ही बहर में बातें होती है, इसलिए ये नज्म है। लेकिन है कौन सा नज्म? ये एक आजाद नज्म है। कौन सा नज्म है? ये एक, याद रखिए ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा बिहार बोर्ड में कि नज्म खेती ये कैसी नज्म है? पाबंद नज्म है, नज्म मुअर्रा है, नसरी नज्म है, आजाद नज्म है। ये एक आजाद नज्म है। दूसरा क्वेश्चन है, खेती की हैयत क्या है? बस इसी के सटा हुआ अभी जो क्वेश्चन मैंने कहा आपको, खेती क्या है? ये एक आजाद नज्म है। उसके बाद है, इस नज्म के शायर कौन है?
यानी खेती नज्म के शायर कौन है? बताइए कौन है? अमीक हनफी साहब है। 1928 में पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में। 1988 में इनका इंतकाल हो गया था। और सबसे पहला शेरी मजमुआ संगे पैरहन, याद है ना? चलिए वाह, याद है आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद है बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। क्या ये मिसरा नज्म खेती से माखूज है? हाँ है। अगर ये नहीं भी पूछेगा, आपको ये पूछ देगा कि और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, किस नज्म से लिया गया मिसरा है? तो आप कह सकते हैं ना कि ये खेती से लिया गया है। आसान, बिल्कुल आसान है ये। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें कौन मरहमत करता है? वक्त। कौन करता है? वक्त ना। वक्त हरा भरा रखता है, किसको खिजा कर देगा, किसको सुखा देगा, किसको सूखी रोटी खिलाएगा, किसे महलों में खिलाएगा, इसे किसी को पता नहीं है अगले चंद लम्हों के बाद क्या होने वाला है। और ये कौन करता है? ये सब का सब वक्त करता है। उसके बाद है सूरज की किरण हमदमी में क्या वक्त हमें चूमने देता है? बिल्कुल चूमने देता है। उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल के बारे में इसके अंदर है, मैं बता रहा हूं आपको। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि क्या है, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है या नहीं है? आसान क्वेश्चन है ना। क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। आपको ऐसे जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है, तो आप इसका जवाब लिखिए, ऐसे डिफाइन कीजिए कि हाँ तमाम इंसान वक्त की खेती है। तब आपको मार्क्स देने वाला अच्छा नंबर देता है। तब उसे लगता है कि बच्चे में क्या है कि मेयार है, बच्चा अपने लेवल से तैयारी करके आया हुआ है। क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? जी बिल्कुल वक्त के लुक में है। वो कब मौत के आगोश में चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद है क्या वक्त नज्म खेती का मरकजी किरदार है? मैंने भी कहा आपको कि नज्म खेती का मरकजी किरदार क्या है? वक्त है ना, ये वक्त है। ये सब चीजें हैं जो आपके निसाब के अंदर ये बातें कर रहा है कौन? अमीक हनफी साहब। इसमें तमाम चीजों से रूबरू कराया है कि जिंदगी और मौत का जो दरमियानी हिस्सा है, इंसान पैदा होने से लेकर के और मरने के वक्त तक जो हालात है, बस छोटा सा नज्म के अंदर इन सारी चीजों को उसने पिरोने की पूरी कोशिश की है और कामयाब भी हुए हैं। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। अब भी वक्त है। इस नज्म के अंदर जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या है? बहुत कुछ है। वक्त अगर आप अपने हिसाब से संजो लेते हैं, वक्त अगर आप अपने हिसाब से समेट लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप एक कामयाब इंसान हो। नहीं, वक्त को अगर तुम छोड़ दोगे, अभी पढ़ने का टाइम है और तुम खेलने चले गए, अभी सोने का टाइम नहीं था, पढ़ने का टाइम था, अभी खेलने का टाइम नहीं था, पढ़ने का टाइम था, आप सेंटर का स्टूडेंट हो, और फिर अगर आपका ये हालात है, फिर वक्त आपका भी साथ नहीं दे सकता है। इसलिए वक्त का अगर तुम्हें साथ लेना है तो वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जी, वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप क्या दोस्ती, क्या सहेली, क्या बोलते सखी, सारे लोगों से जुदा होइए। हाँ, अगर जाना ही है, मिलना है उससे, तो उससे मिल करके कोई चीज लीजिए उससे जो आपके निसाब के हिसाब से हो, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो, उससे कुछ बातें लेने की पूरी कोशिश कीजिए, इससे कि आपका वक्त बर्बाद नहीं हो। वक्त बर्बाद करने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए वक्त का पाबंद होइए और अपने आप को वक्त पूरे तरीके से अपने जिंदगी को, ये 5 साल मैं समझता हूं कि 9, 10, 11, 12, 13 यानी 9वां से लेकर के और BA तक, ये 5, 7 क्लासेस हैं। 7 साल का लाइफ है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि BA पास। ये 7 साल अगर आप अपनी जिंदगी, 60 साल की जिंदगी में अगर इस 7 साल को आपने दे दिया, तो आप यकीन मानिए कि आप का अगला 50-60 साल जो जिएंगे ना, आप बड़ी खुशी में जिएंगे, आप बड़ी मस्ती में जिएंगे आप। लेकिन अगर ये 5 से 7 साल आप गंवा दिए,
इस एज को आप गंवा दिए मस्ती में, खेल कूद में, तो मैं समझता हूं कि 60 साल तक आपको रोना पड़ेगा और भटकना होगा, फिर कोई आपको पुरसाने हाल नहीं होगा। आप कहां होंगे, किस हाल में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं, मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि ये 4-5 साल बड़ी ईमानदारी के साथ, जिस चालाकी के साथ समेट करके अपने पास रख लीजिए, है ना। फिर आप कामयाबी की मंजिल छू लोगे, नहीं तो फिर आप भटकते रह जाओगे। आपको कोई ढूंढने वाला नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, हत्ता कि आपके घर में लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जी, आपकी इज्जत आपके घर में नहीं होगी, बात तो छोड़ दीजिए आप। इसलिए अपने आप में तहैया कीजिए, इरादा कीजिए कि मैं कर सकता हूं। अरे भाई, आप में सारी सलाहियतें मौजूद हैं, कौन कहता है नहीं है। आप में सारे जुनून है, सारे जज्बा है, बस करके दिखाइए। आप एक चीज है, वो है मेहनत। जिस दिन मेहनत का आप चाबी खोल दीजिएगा, मैं समझता हूं कि आपसे कोई लड़ नहीं सकता है, सबसे आगे आप होंगे, सबसे आगे आप होंगे, ये मेरी गारंटी मैं कह रहा हूं आपसे। इसलिए बाबू मेरे लाल, आप कर सकते हो, आप कामयाबी की मंजिल छू सकते हो। आपको सिवाय किसी में दम नहीं है जो नहीं कर सकता है। आप में दम है, आप में वो कुव्वत है, आप में वो खुदा ने सलाहियत रखा है। आप कीजिए, करके दिखाइए, होगा क्यों नहीं। आप पहले करें तो सही। आप अपनी जिंदगी में तहैया कर लीजिए कि चाहे वो त्योहार का दिन हो, चाहे वो छुट्टी की रात हो, चाहे वो दिन हो, दिन कोई भी हो, हमें आधा घंटा 1 घंटा कम से कम पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। यही लाइन जो है ना, इंसान को कामयाब बनाता है, ईमानदारी से। आप 8 घंटा पढ़ लीजिए, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है ना, तो फिर आप बहुत खसारे में जाने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप 2 घंटे ही पढ़ते हैं लेकिन पूरी फुल ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत बुलंदी पर जाने वाले हैं आप, बुलंदी बहुत जल्द छूने वाले हैं आप। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे बुलंदी के साथ, हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, अलिफ लाम मीम जहां आपके साथ खड़ा है। और मैं समझता हूं कि उर्दू के अलावा जो भी किताबें हैं, जहां से भी पढ़ते हैं आप टाइमिंग कर दीजिए कि 2 घंटा देना है। अगर 8 घंटा पढ़ना है ना, 2-2 करके बांट दीजिए। 10 घंटा पढ़ना है ना, 2-2 घंटे करके बांट दीजिए। आप यकीन मान लीजिए 24 घंटे में आप 6 घंटा सो लीजिए। भाई बहुत है, क्या कीजिएगा सो करके, पूरी जिंदगी भरी पड़ी है सोने के लिए। भाई आप उठिए, सोइए। क्यों सोए, तो गधे सोते हैं बहुत देर तक, इंसान कम सोया करते हैं। जी, 6 घंटा सफिशियंट है आपके लिए, बॉडी के लिए। 6 से 7 घंटा आप सो लिए, आप काफी हैं। आप अपनी नींद को भगा के रखिए दूर दराज, फिर तुम्हें मिलेंगे। बिस्तर है ना, आप बिस्तर को बोल दीजिए, ए बिस्तर मैं उठ चुका हूं, मैं तुम्हें 9 बजे रात से पहले मुलाकात नहीं दूंगा मैं तुमको। जी देखिए, फिर कामयाबी नहीं हो सकती है, क्या बात करते हैं आप। इसलिए मैं, मेरे अजीजों, मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं, अपनी कोशिश को मत हारिए, अपनी कोशिश को पूरे बुलंदी के साथ रखिए, अपने हौसले को पूरा बुलंद रखिए। आप जिस फील्ड में हैं, आप कॉमर्स लिए हुए हैं, आर्ट्स लिए हुए हैं, साइंस लिए हुए हैं, आप किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आपके अंदर बस एक ईमानदारी, दूसरा हौसला होना चाहिए। ये 2 चीज अगर आपके अंदर बना हुआ है, तो समझ लीजिए आप सबसे अच्छे बंदा होने वाले हैं, सबसे अच्छे इंसान अपने फील्ड में होने वाले हैं। जी, सबसे आला दर्जा मिलने वाला है आपको, और आप कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।